امریکی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ریزسٹنس فرنٹ کو ایک فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ہے ڈکلیئر کریں گے. ٹی آر ایف کو جس کو یو ایس نے بین کر دیا گیا ہے. امریکہ نے بولا ہے کہ وہ آرگنائزیشن جو اس حملے میں پہلگام میں انوالو تھی اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے, اسے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا. کیا دیکھیں بالکل ہو جانا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ذاتی طور پہ نریندر مودی کی پرسنالٹی کا وہ اسیر ہے, یعنی کہ وہ فین ہے, وہ اوبسیسڈ ہے ان کی پرسنالٹی سے, کیونکہ وہ ایک ایمرجنگ لیڈر ہے. پاکستان نے کوشش کی تھی کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر ریزسٹنس فورم کا نام نہ آئے, اور اس حوالے سے جب پہلگام کا واقعہ ہوا تو پاکستان کے جو فارن منسٹر ہیں اس وقت انہوں نے کہا جی کہ اگر پہلگام کا نام آئے گا تو ساتھ جموں اینڈ کشمیر آئے گا, اور یہ چیز جو ہے دیٹ واز دیر امپورٹنٹ چیز تھی اس وقت. بہرحال اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ امریکہ نے آج یہ کیا ہے کہ امریکہ نے دا ریزسٹنس فرنٹ کو ڈیزگنیٹ کر دیا ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن, اور یہ امریکہ نے ان کی جو فارن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کی وہ لسٹ میں ڈال دی ہے. ٹی آر ایف کیا ہے, 2019 میں بنی تھی, کہا جاتا ہے کہ یہ ایک آف شوٹ ہے لشکر طیبہ کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے انڈیا کہتا ہے کہ گو کہ انڈیا اس کو بندے نہیں پکڑ سکا, فی الحال انڈیا اس کے بندے نہیں پکڑ سکا, لیکن سٹل انڈیا کہتا ہے جناب کہ یہ گروپ انوالو تھا اور ہم اس کو پکڑیں گے. کب پکڑے گا انڈیا, کیسے پکڑے گا, انڈیا کی کتنی پروب ہے, یہ ابھی تک جتنی بھی پوزیشن ہے اس میں انڈیا کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے کہتے ہیں اس نے 2 لوگوں کو پکڑا ہوا ہے جو ان چیزوں میں انوالو تھے. انڈیا نے گھر بہت سارے لوگوں کے گرائے ہیں لیکن بندے 2 پکڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یو ایس نے ایک پریس ریلیز, یہ وہاں اس طرح کا واقعہ دنیا میں کہیں ہو, جعفر ایکسپریس پہ بھی ہوا, تو وہ ایک پریس ریلیز یونینیمس 15 ممبر ہیں, 5 پرماننٹ ہیں, 10 نان پرماننٹ الیکٹڈ ہوتے ہیں 2 سال کے لیے, تو وہ ایک پریس ریلیز انہوں نے اسی سسٹم کے تحت دی. مجھے کاپی مل گئی, اس میں پاکستان کے بہاف پہ میرے 2 اعتراضات تھے. ایک اس میں پہلگام لکھا ہوا تھا صرف, اور دوسرا اس میں بلیم ڈالا گیا تھا دی ریزسٹنس فورم. یہ وہ فورم ہے کہ جب 2019 میں اس کو ہڑپ کیا گیا غیر قانونی, جو کہ ہم نہیں مانتے, وہ بالکل انلیگل ہے, تو اس کے نتیجے میں جموں اینڈ کشمیر میں ایک فورم بنا جس کا نام ہے دی ریزسٹنس فورم, اور اس پہ اس کو کنڈیم کیا گیا, اس کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا اس پریس ریلیز میں. تو مجھے آئی, میں نے دیکھا, میں نے کہا یہ ایکسیپٹیبل نہیں. پہلگام کے ساتھ آپ کو لکھنا پڑے گا جموں اینڈ کشمیر. ہماری شٹلنگ ہوئی, آبویسلی یہ دن ایسے ہی ہیں کہ کیونکہ ٹائم کا بھی گیپ ہے ادھر نیو یارک میں. ادھر میں نے اپنے امبیسڈر صاحب کو, جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو ہیں آصف افتخار صاحب, ان کو کلیئر انسٹرکشنز دیں کہ آپ لکھ کے 2 امینڈمنٹس اس میں ڈال دیں, کیونکہ کنسنسس کے ساتھ یہ ایشو ہو سکتی ہے, ورنہ یہ ایشو نہیں ہو سکتا. ہم اس وقت تک نہیں کریں گے. اور میں نے کہا ان کو بتائیں کہ دنیا میں لندن سے 3 یا 4 ہیں, تو اگر لندن میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کیسے لندن لکھیں گے, ساتھ آگے یو کے لکھیں گے یا کینیڈا لکھیں گے یا یو ایس اے لکھیں گے یا آسٹریلیا لکھیں گے. بھائی ایک جگہ ہے, لکھو نا, کیوں شرما رہے ہو جموں اینڈ کشمیر لکھنے میں. دوسرا میں نے کہا یہاں ہمیں ایویڈنس دکھائیں کہ یہ دی ریزسٹنس فورم نے, دی ٹی آر ایف نے کیا ہے, تو پھر ہم اس کو رہنے دیں گے. یا ان کی اونرشپ دکھا دیں کہ انہوں نے ایک میڈیا میں چلا بھی دیا کہ انہوں نے اون کر لیا, وہ جھوٹا تھا. نہیں یہ نہیں ہے. تو اس پہ قریباً ہمارے 2.5 دن لگے. وی ریفیوز ٹو بج ان. مجھے بڑے بڑے کیپٹل سے کالیں آئیں کہ دیکھیں اس وقت میں کہا جی نتھنگ ڈوئنگ, یہ نہیں ہو سکتا, پاکستان ول ناٹ ایکسیپٹ. وہ کہتے ہیں آپ پہ بلیم آئے گا, پریس ریلیز نہیں ہوئی, اتنا بڑا واقعہ ہوا, آپ کے جعفر ایکسپریس بھی یہ آئی تھی, کنڈیمنیشن کی, ٹیررز ایکٹیویٹی کو کنڈیم کیا گیا تھا. میں نے کہا وی آر ریڈی, بٹ پلیز یو ہیو ٹو پٹ ان جموں اینڈ کشمیر اینڈ ہیو ٹو ڈیلیٹ دس ٹی آر ایف. اللہ کے فضل و کرم سے جناب چیئرمین پاکستان کے کو یہ مبارک ہو اور آپ کو کہ ہم نے وہ دونوں چیزیں
अमेंड करके वो प्रेस रिलीज जारी हुई और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को देखिए कोई एक तंजीम बैन हो जाती है तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा क्योंकि बहुत सारी तंजीमें बैन हो चुकी हैं। ठीक आपकी है। जमात उद दावा बैन हो गई, जैश मोहम्मद थी, लश्कर तैयबा थी, फिर लोग वही रहते हैं, स्ट्रक्चर वही रहता है, नए नाम से नई तंजीमें बन जाती हैं। अच्छा और फिर जाहिर सी बात है जो ये तंजीमें बैन हो जाती हैं ये किसी और तरफ निकल जाती हैं, फलाही काम करना शुरू कर देती हैं, कुछ नाम बदल लेती हैं। ठीक है। बाकी कश्मीर कॉज जो है वो तो एक बहुत कम्प्लेक्स इशू है। आप इस पे मैं यहाँ खड़े होकर राय दे दूँ, आप यहाँ खड़े होकर राय दे दें। कश्मीर जो है वो बेसिकली वहाँ के मकामी लोगों का ज़्यादा इशू है। हमें तो यहाँ बैठ के हक़ाइक़ का भी नहीं पता होता। सही बात है। और कश्मीर इशू तो 1947 से चल रहा है, कोई आज का नहीं चल रहा। कितनी तंजीमें बन चुकी हैं, कितनों ने आज़ाद करवा लिया कश्मीर को। तो कश्मीर तो बन चुका है एक इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री बन चुकी है। हाँ कि कश्मीर एक इंडस्ट्री है, दोनों तरफ के लोगों को उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है। Agree. पाकिस्तान जो है कश्मीर कॉज तो काफ़ी पहले की, हम इससे काफ़ी पीछे चले गए थे। आपने कभी एक सुना होगा कि इल्ज़ाम लगता था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे कि उन्होंने जी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाया, कभी खालिस्तान को नुकसान पहुंचाया। तो सियासतदानों पे ऐसे इल्ज़ाम लगते रहे हैं और जब हम उनकी हक़ाइक़ देखते हैं तो अक्सर उसमें से क्या निकलता है, झूठ निकलता है। तो ऑन पेपर हो ना हो, लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं तो साबित शुदा है कि पाकिस्तान खालिस्तान की तहरीक को भी कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर रहा था। ठीक हो गया सर। तो अब आप इंडिया के नुक्ता नज़र से देखें, अगर इंडिया पाकिस्तान में बैठ के खुदा न खास्ता बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है तो हमारे लिए वो विलन है और हम उसको बुरा कहेंगे, हम उसको बैन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान में अगर इंडिया में खालिस्तान के लिए कोशिश कर रहा है, कश्मीर के लिए कोशिश कर रहा है तो इंडिया के लिए पाकिस्तान विलन ठीक है। है। इंडिया उसको बैन करवाने की कोशिश करेगा। अब आपने उसमें ये देखना है कौन सा मुल्क किस हैसियत का मुल्क है। ठीक है ना, आपके फॉरेन रिजर्व्स कितने हैं, आपकी तिजारत कितनी है दुनिया के ममालिक के साथ, दुनिया के ममालिक का आपके साथ इंटरेस्ट क्या क्या है। चीन तो मजबूरी में हमारे साथ चिमटा है, उसकी वजह यह है कि हम एक तो उसके हमसाए हैं, हाँ। दूसरा जितनी भी आपकी अटलांटिक एलीट है, मतलब अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, वो इन्वेस्ट करना चाहते थे किसी दौर में पाकिस्तान पे, अब वो इंडिया पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि इस खित्ते को किसी एक ताकत से कंट्रोल करें। चाइना उनके हाथ तो नहीं आता, चाइना तो खुद बहुत बड़ी ताकत है, वो पाकिस्तान इस खित्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं इंडिया से। ठीक है। आप इस बात को, जाहिर सी बात है, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि इंडिया, यूरोप सारा ही तकरीबन, या खुद अमेरिका भी, वो पाकिस्तान को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इस तरह किसी मामले में। ठीक हो गया। हमें चाइना की सपोर्ट इसलिए रहती है क्योंकि चाइना जो है कहीं ना कहीं पे उसको लगता है कि इंडिया से बेहतर पाकिस्तान है, तो वो एक है। बाकी ये बनी थी, बैन होगी, नहीं बन जाएगी, कोई बहुत पुरानी नहीं थी, 2019 में बनी थी गालिबन, तो वो नहीं बन जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वही वाली बात है कि कश्मीर कॉज जो है वो, या तो दो चीज़ें होती हैं, आप इतने ताकतवर हैं आप कश्मीर जाके ले लें, इतने ताकतवर आप हैं नहीं। ठीक है, चीमा साहब, मैं आपकी ऑनेस्ट ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि आप ये समझते हैं, बीइंग अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, कि इंडिया में जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स हुए हैं 93 से शुरू कर लें, फिर पार्लियामेंट पे अटैक हुआ 2001 में, फिर मुंबई में हुआ, उसके बाद 4-5 अटैक्स हुए, वो सब इंडियन गवर्नमेंट ने करवाए और वो सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन थे। वी नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वी आर नॉट स्पोक्स पर्सन फॉर एनी गवर्नमेंट। सर मैं सुन ले प्लीज। सर आपने कहा कि एक बंदे को भी पकड़ा होता तो उसको सामने लाते, अजमल कसाब को इंडियन गवर्नमेंट सामने लाई, उसको भी हमने इनकार कर दिया। हमारे लोग क्या कहते हैं, वो तो पाकिस्तानी था ही नहीं, ये जंग ने गद्दारी की है जी, फलां ने गद्दारी की, उन्होंने कह दिया जी इसका तो ताल्लुक देपालपुर से है, यहाँ से है। आज भी हम जियो को माफ करने के लिए तैयार नहीं है कि उसने वो दिखा दिया। अब्दुल बासित साहब जो एक पब्लिक फेस है हमारी डिप्लोमेसी का, वो टीवी पे भी आते हैं, अपना चैनल भी चलाते हैं, उनका एक ट्वीट था 29 अप्रैल का। ही सीम टू जस्टिफाई दिस एज एन एक्ट ऑफ लेजिटिमेट रेजिस्टेंस। उन्होंने कहा जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, और ये कंडेमनेशन नहीं होती चीमा साहब जब आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हो भारत ने झूठा ड्रामा रचाया है। सो कंडेमनेशन बिक चढ़ती, बीच में ही टूट जाती है। जी, मैं चीमा साहब की बहुत सी बातों के ऊपर इत्तेफाक नहीं रखता। मसलन कि जैसे चीमा साहब ने कहा कि देखें जी, अमन की आशा वालों के तो बेचारों के हाथ में ही क्या है, आम बंदा हम और आप बैठ के अमन की बात कर भी लें तो उससे क्या कुछ निकलना है। असल में तो पॉलिसी मेकर जो हैं उनका फैसला मैटर करता है, वो कैसा सोचते हैं, वो क्या करते हैं, दैट मैटर्स। अच्छा, ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये भी देख लेना चाहिए कि पॉलिसी मेकर्स को इन्फ्लुएंस कौन करते हैं।
इन्फ्लुएंस करने वालों में जो नैरेटिव जो लोग शेप कर रहे हैं, जो डोमिनेंट नैरेटिव जिनके हाथ में है, वो हॉक्स हैं ज़्यादातर। वो ऐसे लोग हैं कि जिनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, अगर मैं और आप बैठकर अमन की बात करें, तो मुमकिन है कि 10 बंदा नहीं होगा हमें देखने वाला। लेकिन अगर हम एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ें, जो कि ट्रेंड है पिछले 7-8 साल से, तो लोगों ने कहना वाह अभी वाह हमारा शेर जीत गया, वो कहता है जी हमारा बंदा जीत गया, ठीक है। और वो समझते हैं कि यही असल में नैरेटिव है। अच्छा, यही चीज फिर ट्रांसलेट होके मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमें दिखाई देती है। अब ये जो रिसेंट अटैक हुआ पहलगाम का, जिसके अंदर 26 बेगुनाहों का कत्ल किया गया, वो 4-5 दहशतगर्दों की तरफ से, अगर मैं हुकूमत का नुमाइंदा होता हिंदुस्तान में, तो मैं ये कहता कि हम मीडिया को और तमाम सोशल मीडिया पे हर प्लेटफॉर्म को ये बिल्कुल वाज़े अल्फाज में बता देना चाहते हैं कि अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन होनी है, हम ये इस्टेब्लिश करेंगे, पूरी तह तक जाएंगे कि ये अटैक किसने करवाया है, कौन वो लोग हैं जो उसमें मुलव्वज़ है, और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो आपके सामने हकायक रखेंगे। अच्छा, हिंदुस्तान 2-3 हफ्ते का टाइम लेता, उसके बाद में पूरे सबूतों के बेसिस के ऊपर अगर हुकूमत इंडिया की कोई पाकिस्तान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक भी करना चाहती है, तो वो भी उनका प्रेरोगेटिव है। मीडिया को जैसे आपने कहा हम छोड़ देते हैं, किसी डिसीजन मेकर से, किसी पॉलिसी मेकर से अगर आप पाकिस्तान में पूछें, आर्मी चीफ से पूछें, प्राइम मिनिस्टर से पूछें, फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर से पूछें, तो वो यही कहेंगे हम ये अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, बस कश्मीर का मसला हल कर दें। तो इस पे जो है आपके ख्याल में क्या है, व्हाट इज द मिनिमम दैट पाकिस्तान वांट्स, और क्या हमारे यहाँ क्लैरिटी है, कोई इस पे नॉलेज है लोगों को कि कश्मीर का इशू क्या है, उसका क्या प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक सोल्यूशन क्या हो सकता है? चौर साहब, कश्मीर के इशू को डिस्कस किए बगैर भी बहुत सारी भारत और पाकिस्तान की बातें हुई हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है, वो कश्मीर के इशू के बगैर ही हुआ है ना भाई। सो बहुत कुछ हो सकता है। इस वक्त प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अब देखें ना चौर साहब, कल जयशंकर साहब चाइना में थे, उन्होंने क्या स्टेटमेंट वहां पे दी? उन्होंने कहा जी वी लुक फॉरवर्ड दैट द कंट्रीज विल रिस्पेक्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ मेंबर स्टेट्स। इंडिया अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी की डिमांड किससे कर रहा है? चाइना से। लेकिन साथ कह रहा है मैं $125 अरब का कारोबार भी करना है, और कहते हैं हाँ हमने डिफरेंसेस ठीक करने हैं, हमें बात करनी है, हमें आगे की तरफ जाना है, हम स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, देयर इज अ पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी। ये अल्फाज है जयशंकर साहब के। जब पाकिस्तान की बात आएगी कहते ने गल ही नहीं करनी, पूछो ही ना, टुरना ही नहीं अगे, ऐसी दी तैसी, कश्मीर वापस करो, इंज कर देंगे, फड़ लेंगे, मार देंगे, खिंच देंगे, कर देंगे, पीछा कर देंगे, ऐ तो गल होंगी। सो उन इंडिया को इस चीज का अंदाजा है कि राइट नाउ क्या करना चाहिए, कोई इस वक्त वो नहीं। वहां भी ये बात चल रही है कि पाकिस्तान पॉलिटिकली पोलराइज था, डिस्टेबलाइज था, इकोनॉमिकली वल्नरेबल है, देन इंसर्जेंसीज हैं। दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू स्टेबलाइज पाकिस्तान। अभी इंडिया पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन हो जाए तो ताल्लुकात पाकिस्तान तो नॉर्मलाइजेशन के पाथ पे चल पड़ेगा। तो इंडिया ये समझता है कि दिस इज अ मोमेंट कि हमें अपने तमाम चीजें जो हैं उनको हाथ पे हाथ धर लेने चाहिए एंड बस देखें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और दूसरी बात, पाकिस्तान की कमजोरी क्या है कि वी कैन नॉट ऑफर इंडिया एनी इकोनॉमिक इंसेंटिव द वे चाइनीज कैन ऑफर। हमारे पास वो बिजनेस नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जो इंडिया के लोगों को हम ऑफर कर सकें। हालांकि अगर ट्रेड हो तो बॉर्डर पे या ये जो स्टेट्स हैं ये बहुत कारोबार कर सकें, शायद अच्छी बड़ी पोटेंशियल है। वर्ल्ड बैंक ने भी कहा हुआ है कि पता नहीं 30-40 अरब डॉलर तक दोनों मुल्क जा सकते हैं, लेकिन वो फिर वो जिसे कहते हैं ना, दे आर नॉट इंटरेस्टेड ऑन दिस। आप वो सुने, वो भगवत मान जो है इंडिया का, वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें करता है आजकल। तो वो मेरा इस भी काम, मुझे तो उनका पहले पता ही नहीं था, मैंने भी रिसेंटली उनको सुना है। तो वो तो बड़ा मज़ाहिया बंदा है और बड़ी बातें चाहते हैं, शुगल मुगल भी लगा लेते हैं। तो द पॉइंट इज के मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया हमारे साथ बात नहीं करेगा डिस्पाइट हमारे साथ जितने मर्जी मसले हैं।